integrate regional literature or these translated books? Because you've written something to be a change maker. And how do we make this more mainstream? What do you think will be some steps that you're going to be taking to make sure that it's reaching a larger audience? Anything you would like to add? No, you carry. I think, you know, I don't think इसमें मैंने कुछ बहुत नया किया है. These steps have been taken by people who have come before me, by translators, by writers who have begun writing in a kind of English which is more Indian, perhaps. You know, whether it was Salman Rushdie writing in his style, or whether Arundhati Roy used the medium of English to make it Indian. But I think there is now more and more Indian classics which are included in syllabuses. I don't know in schools, but at university definitely पढ़ाया जाता है. In fact, Ashoka University में मैं जब था, I realized that there's an interest in Detha because his books, stories were already being prescribed in the English literature departments. And जो ये 3 साल गए हैं, इस दौरान कई सारे PhD students ने मुझसे संपर्क किया कि हम अपना thesis है जो इन कहानियों पे लिख रहे हैं. MPhil students ने 1-2 contact किया. So there is increasing awareness, but I don't think we are quite there yet. Perhaps it's not trickled down to schools. I think Pratham is now doing a series of Indian regional language storytellings, and they're going to have a story day every week. So these kind of things, I think educators have to work. The matter is now available. I think now it's a question of getting it more and more into schools. But I'm not an educator myself, so I don't know what are the problems you face. But I really like going into schools. And जो मेरा एक जो सबसे enjoyable moment या सबसे जो अविस्मरणीय जो पल रहा है इस किताब को लेकर is that जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में जब ये किताब पहली वाली किताब जब लॉन्च हुई तो साथ ही साथ में प्रथम का एक प्रोग्राम होता है जहाँ पे वो सरकारी स्कूलों में आपको लेके जाते हैं टू डू अ बुक रीडिंग और मीट द ऑथर बड़े आउटस्कर्ट्स में. सो मुझे लेके गए वो सांगानेर. By the time I reached, I was like, are you even sure you're taking me to the right place? It's been an hour and a half and we are going on and on. Bagdu cross कर गए, सांगानेर पहुँच गए. And हम वहाँ पे एक सरकारी स्कूल में पहुँचे. सरकारी स्कूल वैसा ही जैसा आप कल्पना में सरकारी स्कूल सोचते हैं. बस एक आंगन के चारों तरफ क्लासेस हैं और बीच में एक पेड़ है. और the kids had never really met an author. They had never met anyone who was writing in English. और मुझे लगा यहाँ पे तो मुश्किल हो गई. अब इंग्लिश ट्रांसलेशंस को लेकर तो आ गए, बट व्हाट इज़ द पॉइंट यहाँ पर कुछ भी कर. तो वो स्कूल टीचर्स दे गॉट वेरी फॉर्मल कि सर आपका चेयर लगा दें. मतलब कुछ नहीं, पेड़ है यहाँ पे, यहीं पे बैठ जाते हैं, बच्चों को आप भेज दो. सो दैट डे एक कहानी मैंने चुनी जो पहली वाली किताब में थी. एक वो उस कहानी का नाम है गुलगुले का पेड़. गुलगुले जो होते हैं संक्रांत पे जो बनते हैं घर पे, मकर संक्रांति पे बनते हैं मीठे पकौड़े. एंड गुलगुले का पेड़, इट्स अबाउट अ बॉय हु लाइक, उसको गुलगुले इतने पसंद है कि वो एक दिन अपनी माँ की बनाए हुए गुलगुले वो ज़मीन में गाड़ देता है. एंड जस्ट लाइक जैक इन द बीन स्टॉक वो पेड़ बन जाता है गुलगुले का. तो वो उसको लगता है कि मुझे तो राज मिल गया, गुलगुले मिले जा रहे हैं, फ्री सप्लाई. सो यू नो ही गोज ऑन एंजॉइंग, बट देन द स्मेल ऑफ दोज गुलगुलाज रीचेज द डाकन, एंड दैट्स वेयर द स्टोरी स्टार्ट्स. द किड्स वर, मैंने वही देखा कि मारवाड़ी में ही कहानियाँ पढ़ी. आई थिंक वो इतना मुझे अच्छा लगा कि एंड दैट डे आई रियलाइज दैट इट्स परहैप्स द फर्स्ट टाइम कि बच्चों ने कहानी में इस तरह के किरदार को देखा है जो उनके तरह है, जो वो खाना खाते हैं वो खाना वो खा रहा है. क्योंकि मोस्टली जब हमने बच्चों का साहित्य पढ़ा स्कूल में, आई ग्रू अप ऑन इनिट ब्लाइटन रोल्ड दाल, एंड आई थिंक आई ड्रू माई मदर क्रेजी आस्किंग हर टू डू फ्रूट केक बेकिंग ऑन सैटरडेज और मेक स्कॉन्स एंड जैम. एंड देयर वाज नो इंटरनेट एंड वी वर फैसिनेटेड बाय primroses, which we had no idea what primroses were, but that was, so you're always living in another land, and that is the subject of literature, right? The project of literature becomes to take you away from everything that is around. It becomes an escapist exercise. And whereas जब मैंने ये लोक कथा बच्चों को सुनाई, so I realized the power of having literature with which you can relate to. And so that is always you know, something I've really enjoyed, that chance to be in Rajasthan and to be able to talk to children. You know, read to the students the originals in Rajasthani. I don't even have to bother with my own translations. You know, Bijji has done that job already. One very quick comment, sir, if you can just keep it really short. Yeah. We're running out of time.
Yeah, I compliment Vishesh for this scholarly and Herculean effort, and I offer the following lines. Because he has done a great service to the Rajasthani language, in my opinion, which it requires a lot because people are forgetting it. I'll just say in Rajasthani कि मायड़ भाषा भूल रहा है बोला राजस्थानी, संस्कृति स्यों भी दूर जा रहा आ है दुखद कहानी, ईस्यों कर अनुवाद विशेष करियो है मोटो काम, निज संपद को ई प्रयास स्यों जग में ऊंचो नाम, देश विदेशा दूर दूर तक फैले मीठी सौरभ, दोहरारी धरती रो जन जन मन में जागे गौरव, नाम काम विशेष करियो है नाम विशेष हुयो साकार। नाम जो विशेष दिया है, काम विशेष करियो है नाम विशेष हुयो साकार, सिरजन पट पर बढ़ो सदा है धन्यवाद शतवार। Thank you very much. So he's even inspired poetry, in spontaneous poetry. So let's end with the brief reading in Marwari, which I think will be a lovely way to end this evening. Right. तो this story is a story, बिज्जी का ही version पढ़ रहा हूँ मैं. This is called Thoti Aunt, which means empty pride. Yeah, empty pride. Thoti Aunt. And खैर कहानी मज़ेदार कहानी है, आप सुनिए. रमनजीत जी जितना बढ़िया तो मुझे नहीं आता स्टोरी टेलिंग करना, but I will try. जीर जिनावर और मिन खां बिचाड़े मोटो भेद ब्यावरो. जीर जिनावर और मिन खां बिचे मोटो भेद ब्यावरो. मिनख रो ब्याह धूमधाम से मनाई जाए. और जिनावरा रो कच पछे काई नी तो दिन गिने नी रात, चोड़े धाड़े निसंग खोटा काम करे. जूना वगतरी जूनी बात, मोटा तड़कारी मोटी रात, एको मिनक जिनरे ब्याव रो अणु तो कोड, जस्ती जणाई ब्याव सारू त्यारो जतो. राम जाने कि कुण बूझ आ कहावत लिखी है कि साठी और बुद्धि नाटी. ये आदमी के तो बुद्धि है जी कि दीप दीप करे, नहीं दीप दीप करती तो 70 साल का उम्र में ब्याव सारू किया तैयार हो. तो लब ब्यावरी हामल भर दी. मोटियारे सुई दूने कोड स्यू कांकड़ डोडरा बांध्या, सेवरा बांध्या, घोड़ी पे चढ़ गयो, ढोल धमाका स्यू तोरण पे पुग्यो. लड़की आला तरफ स्यू एक आदमी बाहर आयो कि इर बाद में बीन स्यू छोटा है जी का तो भीतर पधारो, बटोड़ा पाछा बारात के डेरे जाओ. छोटा स्यू की आंख लो पड़ दो. बारात में एक बदमाश नाई हो. नाई बोलियो का भाई जी अरज करो जी की सोच के करो, ये बारात में सकला छोटा ही छोटा है बीन स्यू. बाद में तो जी की अरज करनी बात तो करी. बटोड़ा पाछा डेरे आ गया और बीन और छोटा बच्चा सारा फेरा में चले गया. पर ई बात ई मुस है ई ताने स्यू भी आदमी के कालजे में बड़त उठ गई. बड़त इसी उठी कि ठंड का मायने ही पसीनो आने लग गयो. Is everyone with me? Do you just want me to? Yeah. So there's a 70-year-old man who's getting married और तोरण पे पहुंच गया है. And पहले फेरों में छोटे लोग ही जाते थे अंदर क्योंकि पर्दा रखते थे, फेरों में औरतें बैठती थी, तो बड़े लोग वापस बारात के डेरे चले जाते थे. तो नाई ने कहा कि जो छोटे हैं वो तो अंदर पधारे, बड़े वापस बारात के डेरे जाएं. तो a nai from the barat, he has a little go at the bean. He says, in this barat everyone is younger to the groom, so please make a request appropriately. Of course he was just having a taunt, but this taunt stung that groom so badly, उस बींद को इतना उस बात का बुरा लगा that he begins sweating at the height of winter. एक करवो पानी ले आकर दो. करवा means a कुलड़िया मट्टी का. एक करवो पानी ले आकर दो. सुनन वाला का इचरज को पार नहीं रियो. 8 की सर्दी और एक करवो पानी. खड़े खड़ी एक डावड़ी बोली का पानी रो करवो एडी किसी तिरस लागी. मारे कालजे तो पानी रो नाम सुने ठंड को धुजनी छूटन लाग जावे. अब बींद राजा को इंपॉर्टेंस मिल रही है तो वो कहते हैं का पानी को कहीं है, नहावन को टाइम होतो तो मैं तो नहा भी लेतो. बींद राजा आदेश रे बाद पानी हाजिर हुई. डग डग एक गटका में पूरो करवो पानी को खाली कर दियो. पूरा हवा में सुरपुर बात चाल गई
कि भाई ओ बींद तो मोटियारा नहीं लारे छोड़े रगत रे निवास बिना इतो पानी क्या पी जाए ई ठंड का महीने इतनी बींद हवा में सुरपुर सुन के बोला एक और करवो पानी को लाओ. He is feeling very happy that the women are impressed by me because I have drunk water in the middle of winter. So he asked for one more pot of water. इतनी लुगाया में सुरपुर और चकचक को पार नहीं रियो का काई खुदो खुद बींद राजा पानी मंगायो फगत मंगायो काई डावडी मारी आंखें का सामने डग डग करके पूरो एक बार में खाली कर दियो. भाई जब तो भगत और बरसारो काई आंटो मन में मोटियार सोई मोटियार हवा में अर्धर उड़ती आ सुरपुर जब बींद का कान में पुगी तो बींद और भी राजी हो एक कर वो पानी और ला कर दो. So he is going on drinking pots of water to impress the women. एक कर वो पानी को और ला कर दो के ए मावड़ी आज पहली इसो करारो बींद ने तू सुनियो नहीं सांभळ्यो पानी सामी देखता है कालजा में ठारी छूटे और एक वो बींद राजा 3 करवा पानी का एक सांस में गटका दियो. साड़ी रा हाथ का सामने करवो जलाकर बोले एक करवो पानी और लाओ. अब तो लुगाए के सुरपुर को पार नहीं रही हो. The women are now lost for words. भाई वो बींद है कि बजराक पेट में अगन देवता तो वासो नहीं कर लियो. I hope the god of fire is not dwelling in his stomach. नाई यारो मोसो हाल में बींद राजा का कालजे बढ़त रागरी. वो आज बींद सोचो कि पेट में अगर सूरज से भी बेसी ताप होतो तो कितनी बढ़िया बात होती. कितना ही करवा पानी को ठंडा कर देतो मैं. एक लुगाई काणो घूंघटो काट के पूछे कि भगवान झूठ नहीं बुलावे मारे ही ब्याह साव टिंगरी होती तो मैं ही ब्याह कर देती इस बींद कैसा के. All the women are saying that I wish I had a daughter. I could have gotten married to such a बींद. इसो कड़क बींद राजा आज ताई तो कदी कौन देखियो मैं. डील रो निवास ही मोटो सुख मन में तो इसी जच्चे के जच्चे तो काई बोलतो बींद राजा बीच में ही बी लुगाई ने कर वो हाथ में लेकर बोला एक कर वो और लाओ. मन ही मन में सोचन लाग्यो कि पेट में सूरज सुई सवाई आंच होनी चाहिए. अब तो लुगाया के चकचक को सूरी बदलीज गयो. जटे खड़ी बठू थुतखारा नाके घूमटाऊ देखे का भाई इया सोना में सोरम मिले. बाई रा ऐसा भाग तो नहीं जानिया. इस सर्दी में ठूक कितने में ठंड लगे और वो देखता देखता 5 करवा पानी को खाली कर दियो. In this cold I can't even swallow my own saliva and he's finished off 5 pots of water. हाथ लेवो जुड़ियो बींदनी का कमला कवला हाथ जब परस होयो तो बींद के और गरमाई आई. एक कर वो पानी को और ला के दो. भला बींद राजा दो आदेश कुन टाले हुकुम रे सरचे कर वो तैयार. पर अब की बात की दूसरी पानी हो भी ठंडो बहुत ज्यादा. आधो मटको पानी को पियो और बींद राजा जमीन पे पानी को मटको माथे पे. अब आंगने में माच गई हाको हाक. बींद राजा वेले रोए कुके पण सुने कुण. लोग तो कहवे कि बींद बुड्ढो होयो तो कहीं 5 करवा पानी को खाली कर दियो. आई सबसे मोटी बात जुना मिनखारी बात ही न्यारी होवे. So at the end, the story ends off with the bean lying on the floor, the pot of water on his head, and he is wailing and howling. But everyone, no one is caring for his wailing and howling. सब आपस में बात कर रहे हैं कि भाई मैं तो नजर उतारती हूँ. ऐसा बींद कभी मेरी बेटी को भी मिल जाए जिसका शरीर गर्म वो मेरी बाई को भी गर्म रख सकता है. ऐसा बींद खोजना चाहिए. पुराने लोगों की तो बात ही अलग है. अब से अपने सब पुराने ही लोगों बींद को खोजेंगे. Yeah. One round of applause for this. And we. Okay, no, I have time. I'm just wondering about everybody else. Do we need to end this? I think I'll continue. Maybe 1 or 2 more questions if there is anybody who really wants to ask something. I wanted to ask if there are no questions. Yes, please go ahead. Hello. Yeah. I met you first at Oxford, where Alka ji was there, Alka Saraudi ji was. And there I learnt about this author, I bought your book and then I started reading him. Okay, so I have been reading a lot,
उनके बहुत सारी मैं कहानियाँ पढ़ रहा हूँ. So is there any way to approach him, because it's so many stories, so many scattered stories. So is there a way to approach him so I can, I can understand him more, and maybe I can do something. All his collected works are published and they're available online. Okay. And also with the publisher. They're called Batari Fulwadi. Okay. It's a 14-volume collection of folk stories. Okay. इसी से मैंने दोनों ही किताबों की जो कहानियाँ इन्हीं किताबों से आई हुई हैं. There are 14 volumes like this. Okay. And they're all available on Amazon, and also with the publisher from Jodhpur. Okay. So you will find it very easy. The books have recently been translated